Om Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadhamapahartaram Dhataram Sarvasampadham Lokabhiramam Sriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 37 of the Ayodhya Kandam, which has 37 slokas. SriRama urges his servants to fetch the bark of trees to be used as his wearing apparel. At this, Kaikeyi herself brings them the desired dress, which both SriRama and Lakshmana, taking off their princely robes, cover themselves with. Sita, however, finds it difficult to wear the bark supplied to her and ultimately puts it on over her own dress with the help of SriRama, despite the remonstrances of Vasistha, who severely castigates Kaikeyi for her cruelty in exiling them. आज हम सप्तत्वयांश सर्गा का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 37 श्लोक हैं। राम आदि का वलकल वस्त्र धारण, सीता के वलकल धारण से रनिवास की स्त्रियों को खेद तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वलकल धारण का अनुचित्य बताना। महामात्र वचः श्रुत्वा रामो दशरथं तथा अभ्यभाषत वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, Hearing the remonstrance of the chief minister, SriRama, for his part, who was an adept in courtesy, politely addressed on that occasion the following words to Dasharatha. त्यक्त भोगस्य मे राजन् वने वन्येन जीवतः किं कार्यम् अनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। What purpose of mine, who have renounced all enjoyments and shaken off attachments for everything, and am going to live on the products of the forest alone, will be served, O king, with an army following me? यो हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुंजरोत्तमम्। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वे अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुषों को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। He who have parted with an excellent elephant seeks to retain the tether is indeed a fool. What is to be gained through attachment to a tether by him who has foregone an excellent elephant? तथा मम सतां श्रेष्ठ किं ध्वजिन्या जगत्पथे सर्वान् एवानुजानामि चीरान् एवान् नयन्तु मे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां चीर चीथड़े या वलकल वस्त्र ला दे। Similarly, O jewel among the virtuous, what purpose of mine will be served with an army, O ruler of the world? I therefore allow all things to be used by Bharata. Let the servant maids of Mother Kaikeyi bring me robes fit for a dweller in forests alone. कनित्र पिटके चोभे स मानयथ गच्छत चतुर्दश वने वासं वर्षाणि वसतो मम। दासियां जाओ, खंती और पिटारी अथवा कुदारी और खांची ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं। Addressing the maid servants, he continues, Go and duly bring a spade and a basket both for me.
I who am going to take up my abode in a forest for 14 years. अथ चीराणि कैकेयी स्वयम् आहृत्य राघवम् उवाच परिदत्स्वेति जनौगे निरपत्रपा। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो पहन लो। Personally bringing pieces of bark for being put on by SriRama and others, Kaikeyi, who was lost to all shame, forthwith said to SriRama in the midst of that concourse of men, put these on. सचीरे पुरुषव्याघ्र कैकेय्याः प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रम् अवक्षिप्य मुनिवस्त्रान् अवस्थः। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतारकर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। Receiving from Kaikeyi 2 pieces of bark for being used as a loincloth and a cover respectively, and discarding his raiment of fine yarn, that tiger among men put on the garb of ascetics, so the tradition goes. लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापश्चादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र पहन लिए। Nay, leaving his exquisite robes on that very spot, Lakshmana too put on in the presence of his father 2 pieces of bark fit for ascetics. अत आत्मपरिधानार्थं सीता कौशेयवासिनी संप्रेक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृषति वागुरामिव। Gazing with reverence on the piece of bark intended for being donned by her, Sita, who was clad in silken robes, felt dismayed as a doe would on seeing a snare set for entrapping it. सा व्यपत्रम् अमानेव प्रगृह्य च सुधर्मणाः कैकेय्याः कुशाचीरे ते जानकी शुभलक्षणा अश्रुसम्पूर्णनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गन्धर्वराजप्रतिमं भर्तारम् इदम् अब्रवीत्। Feeling much abashed, as it were, while taking from the hand of Kaikeyi the 2 articles of wearing apparel made of kusha grass, and greatly troubled in mind, Sita, daughter of Janaka, who was endowed with auspicious bodily marks, knew what is right, and served as an illustration of virtue, spoke as follows, her eyes overflowing with tears to her husband, who vied with Chitrata, the ruler of the Gandharvas. कथं तु चीरं बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः इति ह्यकुशला सीता सा मुमोह मुहुर्मुहुः। I wonder how ascetics dwelling in the forest put on the bark of trees. Saying so, the celebrated Sita, who was in no way adept in wearing the bark of trees, erred again and again in her attempt to do so. तदंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले धर्माज्ञ शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वह कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्व राज के सामने समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। कृत्वा कंठे स्म सा चीरम् एकमादाय पाणिना तस्थौ ह्यकुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर
चुपचाप खड़ी रही। Placing one piece about her neck and taking the other in her hand, the said daughter of Janaka stood abashed, inept as she was in wearing the bark. तस्याः तत्क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृतां वरः वीरं बबन्ध सीतायाः कौशेयस्य उपरि स्वयं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथ से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे। Quickly going near her, SriRama, the foremost of those upholding the cause of virtue, then personally fastened the bark over her silken garments. रामं प्रेक्ष्य तु सीताया बध्नन्तं चीरम् उत्तमम् अन्तः पुरचरा नार्ये मुमुचुः वारी नेत्रजम्। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रणवास की स्त्रियां अपने नेत्रों में आंसू बहाने लगी। Perceiving Sri Ram fastening the excellent bark about Sita, the female inmates of the gymnasium began to shed tears, and sore distressed as they were, spoke as follows to Sri Rama of dazzling glory. ऊचुश्च परमायत्था रामं ज्वलित तेजसं वत्स नैवं नियुक्तेयं वनवासो मनस्विनी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। This high-minded princess has not been so commanded to reside in the forest as you, dear child. पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनं तावत् दर्शनम् अस्या नः सफलं भवतु प्रभो। प्रभु, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे, तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। At least let her blessed sight continue to bring its reward to us during the interim period when you have departed to the lonely forest in obedience to your father's command, O Lord. लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक नेयमर्हति कल्याणी वस्तुं तापसवद बने। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु ये कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। Proceed to the forest, dear son, with Lakshmana alone as your companion. This blessed princess does not deserve to dwell in the forest like an ascetic. कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न हि इदानीं त्वमिच्छसि। पुत्र, तुम हमारी ये याचना सफल करो। भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म परायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। Grant our solicitation, O darling son. Let Sita, the pretty young lady, continue to stay in Ayodhya, though surely you are not personally inclined to stay here any longer, righteousness being your eternal companion. तासाम् एवं विधा वाचः शृण्वन् दशरथात्मजः बबन्धैव तथा चीरं सीताया तुल्यशीलया। Even though hearing such loving remonstrances of those women, Sri.Rama, son of Dasharatha, persisted in fastening the bark over her silken garment as aforesaid, as desired by Sita, whose conduct came into line with his own. चीरे गृहीते तु तया स बाष्पो नृपते गुरुः निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने
सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोकर केकई से कहा, Stopping Sita when the bark was taken by her from the hands of Kaikeyi, sage Vasistha, the king's preceptor, for his part, spoke to Kaikeyi with tears in his eyes as follows. अति प्रवृत्ते दुर्मेदे कैकेयी कुल पांसनी वंचयित्वा तु राजानं न प्रमाणो अवतिष्ठत्सि। मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि के कई तो केकई राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। Having hoodwinked the king, O evil-minded Kaikeyi, who have exceeded your limits and brought disgrace to your family, you do not keep within the bounds yet. न गन्तव्यं वनं देव्या सीताया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतम आसनम। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएगी। राम ये प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। O woman, dead to all decorum, Princess Sita shall not proceed to the forest. She will occupy the throne which was offered to Rama. आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम् आत्मेयम् इति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है, उसी तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये ही सब राज्य का पालन करेंगी। A wife is the very self to all householders. As the other self of Rama, she will rule over the globe. अत यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता वयम् अत्र अनुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति। If Sita, a princess of the Vidaihi territory, retires to the forest along with Rama, we who are present here at this moment shall follow suit, and the people of this city too will go. अंतपालाश्च यास्यन्ति स दारो यत्र राघवः सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च समपरिच्छदम्। यदि विदे नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। ये सारा नगर भी चला जाएगा और अंतपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहां निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। The soldiers guarding the gymnasium too will go with Rama, a scion of the Raghuvamsha, as he stays with his wife. Nay, the entire state of Koshala, including all its resources, as well as the city of Ayodhya with its goods and chattels, will also go with him. भरतश्च स शत्रुघ्न चीरवासा वनेचरः वने वसन्तं काकुत्स्थं अनुवत्स्यति पूर्वजम्। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहां निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। Clad in the bark of trees and dwelling in forest, Bharata too with Shatrughna will adopt the mode of life of his elder brother, a scion of the Kukusta clan living in the forest. ततः शून्यां गतजनां वसुधां पादपैः सह त्वमेका शाधी दुर्वृत्ता प्रजानां अहिते स्थिता। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारनी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। Rule you alone after that the desolate earth, deserted by men only with its trees, because it will be reduced to a mere forest.
vile as you are and bent upon doing harm to the people. नहि तत् भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवस्यति। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा ना होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। The state in which Rama is no longer the king will not survive, while the forest which Rama is going to inhabit is sure to develop into a flourishing state. नहि अदत्तां महिं पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति त्वयि वा पुत्रवत् वस्तुं यदि जातो महीपतेः। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा तेरे साथ पुत्रवत वर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। Bharata surely would not rule over the earth which has not been voluntarily alienated by his father, nor would he live with you as a son, if he is sprung from the lions of the emperor. यद्यपि त्वं क्षितितलात् गगनं च उत्पतिष्यसि पितृवंशचरित्रज्ञः सो अन्यथा न करिष्यति। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। Even if you soar into the heavens, leaving the earth's surface, he would not do anything contrary to the established usage, knowing as he does the practice of his forebearers. तत्त्वया पुत्रगर्दिन्या पुत्रस्य कृतम् अप्रियं लोके न हि स विद्येत यो न रामम् अनुव्रतः। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त ना हो। Therefore, an unfriendly act alone has been done by you to your son, even though you covet his well-being. For there is none in this world who is not devoted to Rama. द्रक्ष्यस्य अद्यैव कैकेयी पशुव्याल मृगद्विजान् गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तद् उन्मुखान्। कैकेयी तो आज ही देखेगी कि वन जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या है, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक है। O Kaikeyi, you will see this very day beasts, snakes, deers and birds going with Rama to the forest, and the trees too eager to accompany him. अथो उत्तम अन्य आभरणानि देवी देहि सुनुषायै व्यपनीय चीरं न चीरमस्याः प्रविधीयतेति न्यवारयत् तद् वसनं वसिष्ठः। देवी सीता तेरी पुत्र वधु है, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनने से मना किया। Therefore, laying aside the bark of trees, give your daughter-in-law excellent jewels, O queen. The bark of trees is not meant for her. Saying so, Vasistha forbade Sita from wearing it. एकस्य रामस्य वने निवासः त्वया वृतः कैकेयी राजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या वसति अरण्ये सह राघवेन। वे फिर बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्र भूषण से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करे। The sage continued,
The sojourn in the forest of Rama alone has been asked for by you, O princess of the Kaikeyi territory. Hence, let Sita, who deserves to be decorated daily, dwell in the forest with Rama, a scion of Raghu, richly adorned. यानैश्च मुख्यैः परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैः विधानैः न इयं वृता ते वर संप्रधाने। राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवा को तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्र और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करे। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। Nay, let the princess proceed fully provided with excellent conveyances and attendants, as well as with costumes of various kinds and all useful accessories, for while asking for the boons, her exile was not solicited by you. तस्मिंस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये गुरौ नृपस्य अप्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य भर्तुः प्रतिकार कामा। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रीतम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। Even though the said preceptor of the king, the foremost among the Brahmanas, who wielded an influence which had no parallel, spoke as above, Sita, who wished to follow the ways of her husband, did not desist from her purpose in the least. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 37 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्ट रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 37 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Taptulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam SriRamam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।